Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon, all. Yes, those who are in the meeting, have you people created the Google form? Good afternoon, Sejal. Create किया on the basis of last class, on the basis of last session. Yes. Have you created any Google form? Or you came across with any of the confusion, any of the doubt? Sanket, Arja, Rhythm, Udit. No, Yes, ma'am, it any was doubt? easy. Okay, it was easy. Have you created a Google form? I, Anybody? yes, ma'am. Very good, excellent Rhythm. What about others? No doubt. या तो देखो no doubt की situation तभी है या तो कुछ नहीं सुना या सब कुछ सुना. अच्छा create किसने किया? So I am giving you the permission to show the screen. Yes, quickly. Till the time others are joining. Yes, किसी और ने create किया? What about Sajal, Udit? Yes, guys, Udit, Sajal, Sejal, Sanket. What about you? You are the special guest for us. Yes, nobody other than Rhythm मैम created the क्लास form. अटेंड नहीं करी थी मैम परसों. Okay. अच्छा last class attend नहीं की थी, so it's a part 2. अब तूने वो main वाला session तो miss out कर दिया उदित. चलो, we'll try. Okay, what about others quickly? What about others? बाकी किसी ने नहीं create किया? चलो, I'll be asking 2-3 questions based on the last session. Please try to answer it as you have the MCQ related to each session. So I'll be asking 2-3 questions on that. So tell me which is the mandatory thing for creating a Google form? Which thing is the basic minimum requirement for creating a Google form? Quickly. Yes, please respond. Yes, Gmail ID is the mandatory thing. Very good. Not only the email ID, Gmail ID is required because email ID is available on the Yahoo also, email ID is there on the Rediff also. But for the Google form, you required a email ID which is with the domain of Gmail. Okay, since this Google form is a Google product, so you required a Gmail ID to create a Google form. You cannot create a Google form using your Yahoo ID, Rediff ID. So you need a Gmail ID. Very good. Okay, my next question, how we can see the preview of the Google form? There is one button. Which button? कैसे मैं देख सकती हूँ कि हाउ दिस गूगल फॉर्म लुक लाइक टू द यस आई I बटन. button. Very good, excellent Sankal. Very good Sajal. I button on the top right corner. Yes, very good. Okay, one more question. Like if I want to ask you about the permanent address, then which type of question is more suitable one? Yes, can we have the answer from Nishant's side? Nishant, Sanket. Yes. Yes, guys. Permanent address. Then which type of question is more suitable one? Okay, yes, Or yes, very good. Yes, short answer type is perfect one. Okay, another one. It is just based on the common sense. If I want to ask about the income level of the person, then which type of question is most appropriate one? Quickly. Then we'll start with the MCQ. session. MCQ. Why? What's the reason? Can't we go for the short answer type? What's problem in that? मैम फिर मैम हम लोग को मैम उसमें पाई चार्ट आई चार्ट मिल जाएगा कि कितने परसेंट ऑफ पीपल की क्या रेंज है एंड दैट ऑल विच विल Okay, बी okay. हेल्पफुल. Okay, so one benefit as per the Sankalp is कि we get one of the statistical tool, one of the graph. Think about from the perspective of a person to whom you are asking the income.
अब MCQ में रेंज वाइज इट्स इजी, बट नोबडी गोना टेल यू द एग्जैक्ट इनकम. कोई लिखेगा अपनी इनकम? मुझे ये बताओ, कोई लिखेगा दैट वी आर अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ और दिस मच अमाउंट ऑफ मनी पर ईयर? So such type of question should be asked in a range format. Yes, I hope my point is clear. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, the last question. If I want to ask about the marital status of the person, which type of question is the perfect one? Marital status of the person. Yes, marital MCQ. status. Yes, MCQ. Then we have married, unmarried, or the separated one or the divorced one. So we go for MCQ. Another one. If I ask for the your experience from a particular event. Let's suppose you visited a food restaurant and somebody asked you ki rate your experience. Think, listen carefully, फिर answer करना. I am saying कि rate your experience, then which is the most appropriate one? MCQ. Linear. Guys, Linear let's scale. focus. Sorry, Sudhanshu? Linear. Yes, Likert scale, or we can call it as linear scale. Focus on the term. I said rate the experience. मैंने ये नहीं कहा कि mention your experience. Linear scale is the most appropriate one. और वैसे long answer type के लिए भी क्या है, but it is very difficult to analyze the long answer type response. Long answer type जो आंसर आपके पास आएगा, ओपिनियन आएगा, it's very difficult to analyze that, because each and every person express the opinion in his or her own words, in his or her own language. So it's very difficult. So better to go for some of the Likert scale, linear scale, very satisfied, least satisfied, satisfied, neutral, this way. Clear? Yes or no? Yes, guys, clear or not? Any doubt? Any doubt in the No, ma'am. topic that we did in the last class? कोई doubt है? Okay. For the formal questionnaire or for the formal Google form, which font style is preferable? Yes, which font size is preferable? If I go for some of the formal event or a formal questionnaire for my research project. Yes, which font size should I go for? Font type should I go for? Yes, quickly. Okay, Times New Roman, very good. Very size is the inbuilt feature. I'm so sorry. Which font type should I go for? This is what Formal. I go for. Yes, formal, or you can go for Times New Roman also. Other playful, and this is suggested in case of some the event which is informal in nature, like you want to organize a farewell for the seniors, then you can go for, you want to organize a birthday party, you can go for other informal type of fonts. Yes, I hope the things are pretty much clear to you from the last class. In case you have any doubt, again repeating, you can ask any time. Just send me the screenshot or you can text me with your doubt and I will clear all your doubts. Okay, so on this questionnaire we were doing the things in the last session, and I am using the same questionnaire. I hope you people also have some questionnaire with you or the Google form that you created in the last class. Yes, everybody is having? No? चलो, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेना साइड बाय साइड, अगर है तो दैट विल बी अ गुड थिंग. Now we'll be starting up with the top line. So I hope screen is visible to everybody. Yes, screen is visible. Yes, ma'am. Okay, Tanvi. So now see on the screen. From the top palette, we discussed few of the things, like this is the title of the questionnaire. This is the folder in which this Google form is stored. I marked it as star questionnaire so that I get it easily. अगर आपने इसको स्टार आइटम किया हुआ है तो आप अपनी ड्राइव में स्टार्ट में जाकर इस क्वेश्चनियर को बहुत जल्दी से ढूंढ सकते हैं. दिस इज द एड ऑन फीचर. इस एड ऑन फीचर के बारे में आई विल बी टेलिंग यू 2-3 more things.
And this color palette we already discussed about the customized theme. This I button is for preview of the form. This is for the undo, like we have control Y. This is for the redo, control Z. सही बोला मैंने? उल्टा बोल दिया. हाँ, तो तुमने किसी ने बताया? Yes, this undo is for control Z and redo for control Y. And next this button is send button. अब इसकी स्टडी करते हैं कि ये send button क्या कहता है. Now you have created the form. अब क्या करना है उसका? फॉर्म क्रिएट करके अपने पास थोड़ा ना रखना है. The form is created to collect the responses. Now how we can send this form to the respondent or to the target population? So we have 2-3 methods. So first go to this send button. If you click on the send button, so first it is showing send via email. ठीक है, forget about this automatically collect respondent mails. ये पूरा मैं अभी बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है. Send via email. So first option is you can send the form via email. So let's suppose I want to send this form to entire batch of 2020. Those who admitted in the year 2020, I want to send this form to every student. So what I'll do is I just copy paste the email ID in this option 2. Clear? Or you can write it down manually. Like suppose any person can tell me the email ID quickly. Jaldi bolo. Email ID. Yes, can we have the email ID of Sankalp? Quickly, Sankalp Mishra. Ma'am, Sankalp Mishra 0.008611. 0.008 611. 6 डबल स्क्रीन देखता रहिए, पता चला किसी और के पास 88819 किसी और के पास ना पहुंच जाए. @mails.ac.in. स्क्रीन देखो संकल्प. ठीक है, ईमेल आईडी. यस मैम. ठीक है. सो आई मेंशन द ईमेल आईडी ऑफ संकल्प मिश्रा. और जिसको भी आप भेजना चाहते हो यू कैन मैन्युअली enter the email ID or you just copy the email IDs and paste it here. Clear? Now this is showing the subject of the mail. क्या होगा? Subject of the mail is questionnaire for perception about healthy food, which is the title of the form. Clear? Next message क्या है? I have invited you to fill in a form, or you can customize it or write it. Please fill the form for my research project. Your response is highly appreciated. Yes, this way you can write the customized message as per your need. Clear? So next option is include form in mail. ठीक है, अभी यहाँ पर ये हाईलाइटेड नहीं आ रहा है. क्यों? मैंने क्योंकि ईमेल आईडी जो है अभी ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं किया. जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगी सो दिस विल शो मी दिस ऑल्सो. सो अभी इसको भूल जाओ. इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल वैसे बता देती हूँ. इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हो, टिक कर देते हो, सो द एंटायर फॉर्म विल अपीयर इन योर ईमेल आईडी. पूरा फॉर्म जो होगा वो आपकी ईमेल आईडी पे दिखने लगेगा. और अगर आप इस चेक बॉक्स को टिक नहीं करोगे देन द फॉर्म विल अपीयर ओनली दिस टाइटल बार इज अपीयर. पूरा एंटायर फॉर्म नहीं दिखेगा आपको. बस इतना डिफरेंस है. सो नाउ आई एम सेंडिंग दिस. सेंड. सो संकल्प विल रिसीव अ नोटिफिकेशन. यस संकल्प? यस मैम. ठीक है. अब संकल्प अपनी स्क्रीन से अगर हमें दिखाएगा तो उसके पास फॉर्म दिख जाएगा कि यस दिस पर्सन इनवाइटेड यू टू फिल द फॉर्म. क्लियर? Now the drawback of this is, अगर मैं if I send via email, then the drawback of this thing is, क्या drawback है इसका? I need the email ID for sure and correct email ID. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सबकी email ID नहीं होती है. हमारे पास even we are with the very close friends की भी email ID नहीं होती है हमारे पास. So another way out is this. Another way is this way. Go to this second option, a clip. This clip size, it is showing you a link. I thought link is clearly visible. Yes? Yes, link is clearly visible on the screen. Yes ma'am. Now you can simply copy this link. Just select, move a cursor there and click on this copy button. But this link is very longer. I want to shorten it. So click on this
shorten URL. So if you click on this shorten URL, then your form link will be shorter. देखिए यहाँ screen पे. Now copy this link. Now the link is copied, and you can send this copied link to your friends via email, via Facebook, via WhatsApp, Insta, any of the social media. So which one is most preferable one? Yes. WhatsApp. What? No, WhatsApp is, yeah, no doubt it's preferred one. But which mode is more preferred one? Via mail or via this sharing the link? Sharing the link is the easiest Sharing task. the link on WhatsApp, that's what I'm saying. Sharing a link on the WhatsApp is the most preferred one, and we people are following this trend also. And for this way, by sending the link, you can approach to the unknown person also, with whom you are not in very touch, with whom you do not have the contact number, the email ID. So you can share your this link of the form on your any of the social media, and people can fill it out. Yes or no? Yes, guys, clear or not? Please respond. At least say yes or no. Yes, ma'am. Okay, so next, Yes, ma'am. this part is not as such required. ये कुछ embedded HTML से related होता है, which is very technical, not for you people. Clear? I hope the two ways to send a form is clear to you. Yes? अब आते हैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे. It is showing automatically collect respondents names, GGS IP और रोहिणी email address. अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ ना यहाँ पर, तो क्या होगा, ये फॉर्म सिर्फ वही लोग भर पाएंगे जिनके पास मेम्स की आईडी होगी. इन शॉर्ट, जो अपनी mems.ac.in वाली आईडी से ही एक्सेस हो पाएगा ये फॉर्म. जैसे बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि मैम हमारे से फॉर्म खुल नहीं रहा, इट इज आस्किंग फॉर परमिशन. तो वो परमिशन इसीलिए मांगता है क्योंकि आप उसको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से ओपन अप करने की कोशिश करते हो. सो इफ आई सेलेक्ट दिस एज द automatically collect respondents name Rohini Delhi email address, then you cannot access the form using your personal email ID. ये तभी ओपन होगा जब आपके पास mems.ac.in डोमेन की आईडी होगी. क्लियर? मैम नो. सॉरी मैम ये स्टोर करने के लिए है ऑप्शन मैम. ये स्टोर करने के लिए ईमेल एड्रेस स्टोर करने के लिए है मैम. ये ऑटोमेटिकली रीस्टोर कर लेगा. ऑटोमेटिकली स्टोर करेगा. बट यहाँ से अगर इस बॉक्स को मैं चेक इन कर दूंगी बच्चे, तो सेटिंग्स में जाने से देख लेना अपने आप चेंज हो जाएगा. दैट द रिस्पॉन्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेम्स यूजर ओनली. देखो आ गए यहाँ पर, रिस्ट्रिक्टेड टू यूजर्स इन मेम्स GGS IP एंड इट्स अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन. और इसको मैं ऑफ कर दूंगी तो आप किसी से भी रिस्पॉन्स ले सकते हो, एनी ऑफ द ईमेल आईडी. इसका ये रिप्रिकॉशन होगा. ये तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये आपसे आपके ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस ले लेगा मेम्स वाले, और आपको मैनुअली ईमेल एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा. ये पॉइंट है. देखो, जिनको नहीं समझ आया मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या पॉइंट है. ऑटोमेटिकली कलेक्ट मेम्स आईडी, इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी मेम्स वाली आईडी मैनुअली नहीं डालनी पड़ेगी. ये अपने आप तुम्हारी मेम्स वाली ईमेल आईडी ले लेगा. और जब मेम्स वाली ईमेल आईडी लेगा तो ये रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा टू दी मेम्स यूजर्स. क्लियर? ये पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि इसका रिपरकशन ये दोनों होंगे. अब देखो यहाँ पर स्क्रीन पे आओ. अब जैसे ही मैं इस बॉक्स को चेक करती हूँ तो एक चीज अपीयर होती है यहाँ पर, दैट दिस फॉर्म इज ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग ईमेल एड्रेस फॉर मेम्स. अब जब मैं इस फॉर्म के प्रीव्यू पे जाऊंगी ना, तो देखना ईमेल आईडी ना दो बार दिखेगी. वन आई एडेड मैनुअली एंड फॉर द अनदर वन आई मेक अ सेटिंग. अब ईमेल आईडी यहाँ पर भी है, और अगर आप उसको देखेंगे दोबारा से तो ईमेल आईडी आपको ट्वाइस टाइम दिखेगी, क्योंकि ये मेरी जीमेल उसी वाली आईडी से मैं कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं आ रहा. ये मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है. देखो, अदरवाइज तुम्हारे को दो ऑप्शन ईमेल आईडीज के दिखेंगे. सो यू कैन अवॉइड दिस आईडी entering this question of email ID, but it is preferred because we are sharing the questionnaire with the other person who doesn't belong to the names. ठीक है, तो इसलिए आप अपना ईमेल आईडी का ऑप्शन जरूर डालें और इस सेटिंग को बदलकर चेंज कर दें कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कि ऑटोमेटिकली कलेक्ट करो, हम खुद सबसे
आप उनकी ईमेल आईडीज एज अ मैंडेटरी फिल करा रहे हैं. क्लियर? एंड इफ यू वांट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेम्स यूजर ओनली, देन यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन. ठीक है? इससे क्या होता है कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हो जाती है. लाइक इफ आई वांट टू कलेक्ट द information about the ID card of the student, so I want to exercise this option so that no other person can fill the questionnaire. ठीक है? किसी और को तुम शेयर करके किसी और से फिल ना करा दो. So I will make this changes. Clear? Yes or no? I hope this point is clear. But for the questionnaire, this is not the suggested step. कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी मत करो और ना ही आप इस चीज को अपने फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करो कि दैट ओनली मेम्स यूजर विल फिल इट. यस, क्लियर? यस और नो? यस मैम. ओके. एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाह रही थी इसमें जो रह गई थी. Let's suppose I want to ask somebody about the mobile number. So I am adding one of the question as mobile number. ठीक है? So जैसे ही मैं मोबाइल नंबर लिखूंगी it will automatically converted into short answer. मैंने कुछ चेंज नहीं किया. This is the suggested by Google itself. So I am making it as a mandatory field. अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा there are 4 options. First, this option is for creating a duplicate question कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी so this mobile number question will appear twice. This is for deleting. This is for making the questionnaire required. And this one, this 3 dots, this 3 dot is showing description and response validation. So let me add description. So as I click on description, a description box will highlight, this line will highlight. I mention it here. Mention your 10-digit mobile number without prefixing 0. ठीक है? क्लियर? ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि जब आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करें प्लीज डू नॉट ऐड दी 0. ठीक है? लोग जैसे लिखते हैं 09999, इस तरीके से ना लिखें. सो यू कैन मेंशन द डिस्क्रिप्शन आल्सो. एंड दिस फीचर इज अवेलेबल इन ईच क्वेश्चन. लाइक नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, I can add the description. So description, please mention the salutation. I am saying कि please mention Miss, Mr, Mrs, जो भी है. So you can add the description in each and every question. Description in the sense, if the question is not self-explanatory, then you can add the description in detail. Clear? Yes or no? Okay. Next is response validation. Some students are very smart. What they'll do is instead of writing mobile number, they just mention 9 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख देते हैं. कोई डॉट डाल के छोड़ देता है, कोई जीरो डाल के छोड़ देता है. What I can do is I can restrict the response also, or I can validate the response also. क्या करूंगी मैं? Response validation. तो इसमें जैसे मैंने रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक किया, दिस थिंग विल अपीयर. क्लियर? यस, आई होप यू पीपल आर विद मी. यस मैम. यस सर. ओके. सो पहली चीज, मोबाइल नंबर जो होगा वो आपके न्यूमेरल फॉर्मेट में होगा. सो सेलेक्ट न्यूमेरल. ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. नंबर कितने का होगा? इट शुड बी 10. डाल दूं 10. तो अगर कोई जीरो भी ऐड करना चाहेगा जानबूझकर भी, तो वो जीरो वाला मोबाइल नंबर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बिकॉज 10 डिजिट तो आपके मोबाइल के होंगे ही होंगे. एंड नेक्स्ट इज, तुम कोई मैसेज देना चाहो, जो पर्सन अगर 11 डिजिट डाल रहा हो तो ये एरर मैसेज उस पर्सन के पास आएगा. इट शुड बी अ 10 डिजिट मोबाइल नंबर. क्लियर? सो लेट go to the preview, फिर ज्यादा समझ आएगा. So in this way you can validate the responses also. जैसे मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड किया था, प्लीज मेंशन दी सॉल्यूटेशन, तो ये शो होने लगा. मेंशन योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर विदाउट प्रीफिक्सिंग दी 0. So I am mention, let's suppose I am entering any of the random number, but it is taking
देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था दैट वाज रॉन्ग। मेरे को क्या सेलेक्ट करना था, ग्रेटर देन, लेस देन, इज अ नंबर, होल नंबर। सो इट इज टेकिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 10। सो इट इज, तो हमें आना था नंबर नॉट बिटवीन, बिटवीन। मैम ये डिजिट्स हाँ, काउंट नहीं नहीं कर रहा नहीं मैम नहीं, ये। डिजिट नहीं काउंट कर रहा है। यस, टेक्स्ट में है, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ दिस, टेक्स्ट में ऑप्शन है कि कितने करेक्टर्स होने चाहिए। अभी मैंने किसी में ऑप्शन देखा था, लेंथ में है, देखो मैक्सिमम करेक्टर काउंट इज 10, बट लेंथ में आपके सब कुछ आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक भी होगा। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट नंबर और ग्रेटर देन, लेस देन सब छोड़ दो, और यू कैन मेंशन इट शुड बी अ नंबर। और अब मैं इसमें अगर कोई भी करेक्टर डालने की कोशिश करूंगी अल्फाबेट, तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। सी इट अगेन। सो इफ आई टाइप ABC, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद मुझे एरर मैसेज देगा। देखो, इट शुड बी अ नंबर। ठीक है, तो कोई भी स्पेशल करेक्टर अगर मैं इसमें डालूं तो ये नहीं लेगा। नहीं, मैम गाइस ये प्लीज, रिस्पॉन्स ये क्यों वैलिडेशन करेंगे? ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह में हो सकता है। वो मीडिया पे दिखता है, मैंने भी एक ये चीज सेकंड, फोटो पे नोटिस एक करवाई। सेकंड, ये यार ये मत बैठो, तुम इसको दिखाएं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ गाइस। संकल्प, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हु इज आस्किंग? कौन यार पूछ मैम रहा ये था? वो ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह में यूज हो सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो बच्चे इनबिल्ट ऑप्शंस हैं, तो उसमें कैसे यूज करोगे हम ड्रॉप रिस्पॉन्स डाउन? वैलिडेशन ये ऑप्शन आएगा ही नहीं फिर। नहीं, उसमें क्या तुम रिस्पॉन्स वैलिडेशन करोगे भी क्या? यू आर प्रोवाइडिंग यू द ऑप्शन, तो कोई और उससे छेड़खानी कर ही कैसे सकता है? यू आर प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेस, तो फिर कैसे? उसमें तो कुछ प्लस माइनस की उम्मीद ही नहीं है। जिसमें आप रिस्पोंडेंट को स्कोप दे रहे हो दैट यू कैन फ्रीली राइट, वहां लगा सकते हो आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप में तब लगा सकते हो आप। जैसे ईमेल आईडी में सपोज करो मैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ, रिस्पॉन्स वैलिडेशन दैट इट शुड बी अ टेक्स्ट, नेक्स्ट इट कंटेन्स अ ईमेल। तो कोई भी इसमें अगर अपना नाम कुछ भी XYZ गलत चीज डालने की कोशिश करेगा तो इट विल गिव यू एरर मैसेज। देखो, जहां पर आप रिस्पॉन्स एकदम फ्रीली रिस्पॉन्स डालने की परमिशन दे रहे हो, वहीं पर तो आप वैलिडेट करोगे रिस्पॉन्स को। बाकी तो आप एक सेट डिफाइंड ऑप्शंस दे रहे हो रिस्पोंडेंट को, और वो उसी में से सेलेक्ट करेगा। यस और नो? यस गाइस, यस और नो? क्लियर? बच्चे कोई डाउट है तो यस अभी पूछ लो। नो मैम। यस, कोई डाउट नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, सो आई थॉट लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो। अब तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो रह गया है, हमने छोड़ दिया कोई टॉपिक ऐसी जो चीज ना समझ आई हो। ओके, चलो अब देखते हैं हम हाउ वी कैन ऐड द इमेजेस और हाउ वी कैन ऐड द videos also in the question. So let's suppose I want to add a question and I want to show a picture of a particular, let's suppose herbal plant, and I want to ask the people, are you aware about this plant or are you uh, use that plant or are you what that plant, जो भी चीज है मुझे वो पूछनी है। So here this image icon is visible, image icon, question के just side में there is a image icon, so click on this image icon and you can upload from your system also, you can upload from your camera also, take a picture and post it by URL, by posting a URL, or you can take from the photo section, or you can take from the Google Drive, or you can take from the Google image search. So let's suppose I am searching the tulsi plant, तुलसी कुमार दिखा रहा है। So I accept this, ठीक है? So click on the image and click on insert. Yes, I hope you people are getting the things. Yes or no? यस मैम। So it's easy task. Go to this image icon और इसमें ना इसको शॉर्ट करने का ऑप्शन भी आएगा, देखो दिख रहा है? आप इसको इमेज को शॉर्टर भी कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि गूगल फॉर्म में बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर आ रही है, सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज आल्सो। यस,
Now I am writing the question. Identify the herbal plant. Clear? So I'm writing it here as tulsi. Next is neem, or you can make it short answer type also. It's totally up to you. None of yeah, कोई other neem. अरे ठीक है. So in this way you can mention the details, or you can make it short answer type. So if I click on this short answer type, the option will disappear. तो आपको नाम mention करना होगा, whether it's a tulsi plant or it's a which type of plant. Yes, clear? Any doubt? And if you want to set up some of the response validation, that the character should not be more than, if you want to write tulsi plant, तो तुलसी प्लांट के लिए आपको कितने करेक्टर्स चाहिए होंगे? मैक्सिमम 18-19. So you can set that limit also. Clear? Yes or no? Yes guys, clear or not? Quickly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next is how we can add the video. So go to this site. यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस थे ना वो सब आप पढ़ चुके हो. अच्छा, एक और चीज है, आइडेंटिफाई द नीम प्लांट. नाउ आई एम सेइंग कि मैं नीम प्लांट्स की पिक्चर दे रही हूं आपको, और आपने उसमें से नीम प्लांट जो है, नीम का जो प्लांट है उसे आइडेंटिफाई करना है. सो वी कैन ऐड पिक्चर्स इन ऑप्शन ऑल्सो. In this question we add the image in question itself, but in this we add the image as option. I hope my point is clear. देखो ऑप्शन के सामने भी आपको इमेज का साइन दिख रहा है, दिख रहा है? ये सब काम आएगा. अभी मैंने जो असाइनमेंट देना है ना तुम्हें, उसमें मैंने यही सारी चीजें पूछी है तुमसे. So click on this add image. What about the external participants? Yes. Yes, what about the external participants? Sanket, Yashika. So you can select the image from your device, from camera, from photos, from drive, and from the image search, which is the best option since we don't have all the pictures in our system. So I'm search about the neem plant. Just like the Google search we did. So you can mention it here also. So I'm mentioning neem plant. नीम प्लांट इमेज, बेटर वर्ड. तो देखो इसमें नीम प्लांट्स की फोटो आ गई, मुझे ये अच्छा लग रहा है. सो आई एम सेलेक्टिंग दिस. सो क्लिक ऑन इंसर्ट. चलो अब हम किसी और, ये तो हुआ राइट ऑप्शन. इसने डायमेंशन अपने आप ही सही ले ली. नेक्स्ट इज, अब मुझे कोई और प्लांट का डालना है, सो दैट कि अब ऑप्शंस तो आप दोगे ना, एंड वन ऑप्शन इज करेक्ट. सो आई एम राइटिंग रोज प्लांट इमेज. So you can select this rose plant image. अब इसमें तो रोज क्लियरली दिख रहे हैं, तो ये नीम का तो पता चलेगा नहीं. सो यू सेलेक्ट एज पर योर, इसको क्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो दिस वे. क्लियर? सो इन दी ऑप्शंस ऑल्सो यू कैन ऐड दी इमेज. कि ऑप्शंस में भी आप इमेज ऐड कर सकते हो. और आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई करो. इसको राइट इट डाउन एज इमेज 1. Write it down as image 1. इसको लिख दो image 2. ठीक है? Yes, I hope my point is clear. हाँ जी, yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this point is clear. Now move to the next question: how to add a video. So if we go to this side, this panel. आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? दिस एड क्वेश्चन ऑप्शन विच इज शोइंग अ प्लस साइन इन दिस सर्कल. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन यू विल एड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ऑप्शन इज
सो इट इज शोइंग इंपोर्ट क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चंस को एक जगह से दूसरी जगह भी इंपोर्ट कर सकते हैं. दिस फीचर इज लीस्ट यूज. सबसे कम यही फीचर यूज होता है कि आप किसी क्वेश्चन को यहाँ से किसी और गूगल फॉर्म में इंपोर्ट करना चाहते हो. तो इसको बहुत कम प्रेफर किया जाता है और बहुत ही कम ये फीचर यूज होता है. इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इट टू वन टू अनदर गूगल फॉर्म, इट्स बेटर टू क्रिएट इट. नेक्स्ट इज दिस टाइटल. ये मैं पहले बता देती हूँ, वीडियो उसके बाद बताऊंगी. देखो अब इसका यूसेज कहाँ होता है. इन दिस क्वेश्चनियर फॉर द फर्स्ट 6-7 क्वेश्चंस आई एम आस्किंग अबाउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन. पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रही हूँ मैं. ईमेल आईडी, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, मोबाइल नंबर, एज ऑफ द पर्सन, birth date, time of the birth, and just after that I switch to the question. What do you think about the healthy food in the COVID situation? So there is a mindset of the person. So what I will do is I will add a title. Like before that I will mention that this is the personal information, and before starting of the question I will mention that these are my research questions. So what I will do is I will select this time of the birth and click on this option, title and description. So if I click on this title and description, just after the time of the birth, this title, untitled title will appear. कि यहाँ पर आप कुछ भी add कर सकते हो. So I am mentioning this section is for the research questions, and in the description you can add there are 10 questions which is required, जो भी आप information add करना चाहें for the study. Clear? So एक अब mindset रहेगा जो भी respondent होगा कि हाँ इसके बाद मुझसे मेरी personal information कुछ नहीं पूछी जाएगी और मुझे जो भी subject matter है उस पे response देने. Yes, my point is clear? Clear or not? और ये positioning समझ आ गई कि जैसे आपने टाइम ऑफ द बर्थ के बाद टाइटल चाहिए था, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टाइम ऑफ द बर्थ. मतलब यहाँ पर इस पे आपको अपना कर्सर लेकर जाना होगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑप्शन. चलो अच्छा, अब मुझे बताओ दैट दिस आफ्टर दिस स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर आई वांट अ टाइटल एज पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो मैं कर्सर कहाँ रखूँ? Like before email ID I want a title with the name of personal information. So I will place my cursor in the very first box, and if I click on this add title, so after that title will appear in which I will mention journal information, or you can write it as personal information. Clear? और इसमें आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा प्लीज फिल ऑल दी डिटेल्स. जैसे कुछ लोग होते हैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते या पूरी आंसर नहीं देते, सो यू कैन राइट दी डिस्क्रिप्शन एज पर योर नेम. यस, माय पॉइंट इज क्लियर. टाइटल की रेलेवेंस समझ आ गई. जैसे हम अपने क्वेश्चंस को हेडिंग देते हैं तो इस तरीके से, और जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे इन द सिमिलर फैशन वी हैव दिस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन द गूगल फॉर्म आल्सो. यस, I know that most of you know how to create a Google form, but the point here is कि आपको सिस्टमैटिकली तरीके से कैसे गूगल फॉर्म को यूज किया जाता है वो चीज बताना मेरा पर्पस है. मुझे पता है सबको, सब जानते होंगे, यू पीपल आर वेरी मच टेक्निकल सेवी, इवन मोर देन अस, मोर देन द टीचर्स, मोर देन द फैकल्टी मेंबर्स. बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपको ये सारी चीज भी पता होनी चाहिए सो दैट योर क्वेश्चनियर विल लुक लाइक अ स्ट्रक्चर्ड वन, कि भरने वाले को पता चले कि हाँ इस पर्सन को नॉलेज है, इसने क्वेश्चनियर को भी बहुत सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, चलो कम बैक. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चनियर पार्ट. सो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर डिस्कस्ड. इमेज, ऐड इमेज आल्सो, so you can add image from here also, or you can add image from this option also. Clear? So I am removing it. And how we can add the video? So click on this add video option. So this is showing the option from the YouTube. Let me search for the
herbal plants. ठीक है. So if I click on this search option, so it will show me some of the YouTube videos on the herbal plants. Oh, I can select that video. Let's suppose I am selecting this herbal medicine video of 6 minutes. देखो अब यहाँ पर ये वीडियो शो होने लगेगी. Yes, visible. अब मैं क्या लिखूंगी? Watch this 6 minutes video and answer the following questions. Now I want to ask one thing. अब यहाँ पर जहां मैंने वीडियो ऐड की है ना, देखो कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं दिख रहा मुझे. आप इस वीडियो को लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो, सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, राइट अलाइन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. क्लियर? अलाइनमेंट ऑफ द वीडियो चेंज कर सकते हो. अब मेरा एक पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जहां तुमने वीडियो ऐड की वहां पर कोई क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं आया. क्वेश्चन आपने खुद से नीचे ऐड करने होंगे. ठीक है. सो ऐड क्वेश्चन, और इन दिस क्वेश्चन मेंशन दैट प्लीज watch the above video and mention your opinion about herbal medicines. And now you can add the questions. इसमें जो भी स्पेलिंग एरर होगा उसकी वजह से मुझे रेड साइन दिखा रहा है. योर्स. Yes, so in this way you can add the question, and you can add 3 or 4 questions based on the same video. Yes or no? Clear? Yes guys, clear this thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how many of you are doing along with me? Yes, how many of you? Okay, Tanvi is doing along with me. What about others? Yes, how many raise hands? Okay, Avya is doing along with me. Okay, what about others? Tanvi, Avya? सिर्फ गर्ल पार. What about others? बाकी नहीं कर रहे हैं. चलो. Others are very smart, I assumed. Okay, now the last option is this. Add section. इससे प्रीवियस वाले सेशन में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था डाउट, या एक क्वेरी थी, कुछ इनकम से रिलेटेड पूछा था तुमने मुझसे. किसी ने पूछा था कि दैट इफ द पर्सन इज सैलरीड और इफ द पर्सन इज अर्निंग और नॉट, देन हाउ वी कैन वैलिडेट द रिस्पॉन्स. किसने पूछा था? इफ दैट पर्सन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो मैंने कहा था कि ऐड सेक्शन में मैं ये सब चीज बताऊंगी. इफ यू कैन रिपीट योर डाउट अगेन. यस, किसने पूछा था? मैम मैंने पूछा था. बोलो, क्या पूछा था, क्या डाउट था? मैम आपने खुद ही क्वेश्चन बताया था कि मैरिड और अनमैरिड, फिर उसके बाद किड्स. अच्छा नहीं, वो तो मैंने सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन में बताया होगा कि मैम अगर सीक्वेंसिंग ऑफ द मैरिड क्वेश्चन शुड अनमैरिड बी. है तो फिर किड्स का मतलब सेक्शन उसमें आएगा नहीं ना. मैंने ये पूछा था अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक करते हैं तो अनदर क्वेश्चन अपीयर्स, वो कैसे होगा? अच्छा, इतना एडवांस अभी गूगल फॉर्म नहीं हो पाया, बट देयर इज वन ऑप्शन ऑफ सेक्शन जो मैं तुम्हें बता देती हूँ. वो मैं तुम्हें बता देती हूँ. जैसे माय दिस रिसर्च स्टडी इज अबाउट द हेल्दी फूड. अब मैं किसी पर्सन से पूछ रही हूँ, आर यू अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन? एंड इफ समबडी सेज नो, देन दैट रिस्पोंडेंट इज ऑफ माय इंटरेस्ट और नॉट. मैं किस पर्सन से पूछ रही हूँ तुम हेल्थ कॉन्शियस हो, वो साफ कह रहा है मैं नहीं हूँ हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल भी. तो क्या मुझे ये क्वेश्चनियर उस पर्सन से फिल कराना चाहिए?
उसको क्या पता होगा कि हर्बल है या हेल्दी फूड की इंपॉर्टेंस। वो कह रहा है मैं बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ। और ऐसा हो सकता है कि जब मैंने इतने सारे लोगों के साथ क्वेश्चनियर शेयर किया हो तो या तो मैं उन्हीं टारगेट पॉपुलेशन को ढूंढूं, दोज हु आर दी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हमें नहीं पता कौन हेल्थ कॉन्शियस है कौन हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। कोई दिखने से दिख रहा है कि बड़ा जंक फूड खाता है, बट बाद में उसका वर्कआउट बहुत ज्यादा हो, और या वीक में कोई एक पर्टिकुलर डे या टाइम डिसाइड हो कि हाँ नहीं इस दिन मैंने जंक फूड खाना है, बट फॉर द अदर डेज ही और शी इज मेंटेनिंग अ गुड डाइट। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आपको नहीं पता कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन जिसको आपने क्वेश्चनियर भेजा है कि वो पर्सन जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है या नहीं। So what you can do is, before going ahead with the questions, you can ask the person whether the person is health conscious or not. Clear? So I can add this question in the journal information. Journal information में पूछ लूँ, because research question पे जाने से पहले तो उस person को मैं यही पूछ लूँ कि भाई तुम health conscious हो या नहीं. So after this time of the birth, I will be adding one more question that is, are you a health conscious person? Option can be yes, Yes, quickly. no. Yes. देखो No. इसने खुद भी दे दी मुझे स्मार्ट ऑप्शंस। यस, नो, मे बी का कोई स्कोप नहीं होता। मे बी वाले तो स्टडी बिगाड़ देते हैं। ठीक है, सो आई एम एडिंग ईदर यस और नो, या तो हो या तो बिल्कुल नहीं। मे बी का कुछ ऑप्शन नहीं है। सो यस और नो। मैं दोबारा टाइप करती हूँ। ठीक है, ये गूगल ना अब ज्यादा स्मार्ट हो गया। जो ऑप्शन मैं मेंशन कर रही हूँ वो नहीं ले रहा, अपने आप में भी ऐड कर रहा है। सो इट इज मेंशनिंग यस और नो। सो आई एम मेकिंग इट रिक्वायर्ड क्वेश्चन। क्लियर? ये पॉइंट ना थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो आने वाले उसमें तुम्हारे को सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड की ना, और यहाँ 3 डॉट्स को प्रेस किया, तो इट इज शोइंग मी 3 ऑप्शन। पहले क्या आ रहा था? डिस्क्रिप्शन, और अब ये मुझे कह रहा है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। अब इसको मैं बताती हूँ क्या होगा। अब मैं पहले इसी के जस्ट बाद एक सेक्शन ऐड करूँ। ऐड सेक्शन। सो जैसे ही मैंने सेक्शन ऐड किया, यस, आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर सेक्शन शो होने लगा, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ 2। मतलब मेरे क्वेश्चनियर के 2 सेक्शन है जिसमें से ये दूसरा सेक्शन है। और पहला सेक्शन कौन सा है? फर्स्ट सेक्शन इज दिस 1 ऑफ 2, जिसमें ये पूरा क्वेश्चनियर है हमारा। एंड दिस इज सेक्शन 2 ऑफ 2। यस गाइज, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Yes, ma'am. क्लियर? अब जैसे सेक्शन 2 को अनटाइटल सेक्शन के बजाय आई एम राइटिंग इट एज रिस्पोंडेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या कुछ भी रिसर्च क्वेश्चन भी डाल सकते हो आप। क्वेश्चन ही लिख दो सर, क्वेश्चन इस टाइटल का नाम। वैसे सेक्शन को आप इस टाइटल डिस्क्रिप्शन को सेक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हो। देयर इज नो नीड। अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चनियर में सेक्शंस नहीं है, देन यू कैन ऐड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एंड इफ sections are there then you can remove this title and description. मेरी बात समझ आई कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है जब अगर आपके पास सेक्शंस है, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन इज आल्सो प्रोवाइडिंग यू द स्कोप टू राइट अबाउट द सेक्शन। आपको सेक्शन के बारे में लिखने का स्कोप दे रहा है ये। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहती हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से क्लिक किया एंड आई सेलेक्ट ऑन दिस गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर। ठीक है, जैसे ही मैंने सेक्शन बेस्ड आंसर पे क्लिक किया, ये मुझसे ना ये चीजें पूछने लग गया। आई एम सेइंग इफ अ पर्सन इज हेल्थ कॉन्शियस देन टेक दैट पर्सन टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड गो टू सेक्शन 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इफ अ पर्सन इज सेइंग नो,
टेक दैट पर्सन टू द सेक्शन टू सबमिट द फॉर्म, क्योंकि तुम हमारे किसी काम के हो ही नहीं। यस, आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अभी शो करके जब प्रीव्यू दिखाऊंगी तो तुम जरूर इसको समझ पाओगे। क्या करना है आपको, क्वेश्चन सेट करने के बाद आपने क्लिक करना है गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, और सेक्शन बेस्ड आंसर के बाद आपने उस क्वेश्चन पे जाना है जो क्वेश्चन आपके रिस्पोंडेंट्स को फिल्टर कर रहा है। जैसे आर यू अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, ये मैंने ऐड किया और यहां से मैंने चाहा कि यस दोज हु आर हेल्थ कॉन्शियस गो टू सेक्शन 2 एंड दोज हु आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस शुड सबमिट द फॉर्म। उनको सेक्शन 2 तक पहुंचाना ही नहीं है मुझे, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। यस और नो? Shall I repeat this point once again? Yes, how many of you got this point? Quickly. It is very important and some little bit critical also. कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? ओके, वेरी गुड। अब देखो, इसके लिए ना सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है, यू शुड सेलेक्ट द फिल्टर क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक फिल्टर क्वेश्चन तुम्हें सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, क्या किया, आर यू अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तभी तो फिल्टर कर पाओगे। जब तुम पहले उससे पूछ ही नहीं रहे हो तो फिर फिल्टर करने का तो पॉइंट ही नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द फिल्टर क्वेश्चन एंड इन दैट फिल्टर क्वेश्चन मेंशन द सेक्शन। चलो अब इसके आते हैं हम प्रीव्यू पे, देखते हैं कि अगर मैं नो करती हूँ तो मेरे पास सबमिट का ऑप्शन आता है, और यस करती हूँ तो क्या नेक्स्ट सेक्शन खुलता है। लेट्स सी। अब चलो, जैसे ईमेल आईडी में मैं मेंशन करती हूँ माय ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी, हियर आई मेंशन द नेम। यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया, आई मेंशन माय एज, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मेंशन कर देती हूँ अभी तो फॉर अ टाइम बिंग, बिकॉज हमें जल्दी से खत्म करना है इसको। टाइम ऑफ द बर्थ 11 AM, नेक्स्ट। यस, प्लीज पे अटेंशन। यस गाइज, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट आई क्लिक ऑन नो, no, I am not a health conscious person. Next it is showing click on next. जैसे मैंने next पे क्लिक किया, it is showing the option of yes, स्क्रीन में 1 मिनट ले रहा है वो अपडेट होने में। देखो, जैसे ही मैंने नो पे क्लिक करा, इसने मुझे कहा सबमिट द फॉर्म। ठीक है, यस और नो? ओके, आई वांट टू कम बैक, मुझे फिर दोबारा से फिल करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन, आई एम क्लिकिंग ऑन बैक। Let's move to the yes option. Yes, I am a health conscious person. एक सेकेंड, ये रिस्टोर करेगा मेरी इंफॉर्मेशन को। Now I am clicking on this yes option. Yes, I am clicking on this yes option. I am going for next. अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, सेक्शन 2, और देखो सेक्शन 2 अपीयर हो गया with the question, what do you think about the healthy food in the COVID situation? Mention your preference for the healthy food. Upload your selfie with the healthy food, or this way. Clear? Yes, now I hope this point of section is totally clear to you. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, if you people are going for a study related to purchase decision, तो सबसे फिल्टर क्वेश्चन क्या बनाओगे? अगर आप किसी से परचेज डिसीजन पूछ रहे हो कि आप मतलब परचेज करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो, तो सबसे पहला फिल्टर क्वेश्चन आप ये पूछोगे, आर यू अ परचेजर? मतलब तुम घर के लिए खरीदारी करते हो, नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो देन यू आर नॉट द टारगेट पॉपुलेशन फॉर अस। और लेट्स सपोज यू वांट टू गो फॉर सम ऑफ द स्टडी रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें फिल्टर क्वेश्चन क्या होगा? क्विकली, Do you invest in mutual fund? do you invest in mutual fund? If a person is saying yes, then he or she is a target population or a target respondent, otherwise जाओ भाई, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। नो तो फिर नो, फिर सबमिट करो और बाहर। yes, I hope my point is clear to you. yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, now
all the topics which are there in this Google form, वो हम सारे कर चुके हैं. We are only left with the responses setting part. Clear? तो अब मैं responses और settings पे जाने से पहले I want to ask any doubt that you have in any of the topic. कोई डाउट है? अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कहीं कोई डाउट? Yes? Any doubt? कोई डाउट नहीं है? Yes or no? कुछ तो बताओ. अच्छा, how many of you are actively listening? Just unmute yourself. Yes, how many of you are actively listening? All right, very good, excellent. चलो वापस आओ. अब देखते हैं responses tab. So this responses tab is showing. Since this form is not yet filled by anybody, so this responses section is showing blank. अगर मैं इसको fill कर दूंगी ना तो यहाँ इसके bracket में सर्कल में नंबर लिखे आने शुरू हो जाएंगे. जैसे ही मैं अगर इसको फिल कर लेती हूँ ना बच्चे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में ही आपको दिखने लग जाएगा कि इस फॉर्म में. चलो एक फॉर्म में फिल करूँ, बाद में करेंगे, चलो अभी नहीं, टाइम वेस्ट होगा. तो अगर रिस्पॉन्सेज में रिस्पॉन्स आप डाल दोगे, अब नाउ इट इज शोइंग 0 रिस्पॉन्सेज, और अगर कोई इसको फिल कर देगा सो इट विल शो यू द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज. नाउ सी, it is showing that we are accepting responses. If I click this as off, it will stop accepting responses. देखो रेड में हाईलाइट होकर आ गया नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज. सो ये फॉर्म ऐसा है जो रिस्पॉन्स नहीं ले रहा. लेट्स सपोज आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग जितना आपको डेटा चाहिए था, यू गॉट द इनफ डेटा, नाउ यू आर क्लोजिंग द फॉर्म. सो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस फॉर्म you can, but just clicking on this tab you can close the responses. ठीक है. Now the next motive, major motive, what we want is the data, the responses. Then how we can get the data? There are two way out. जो भी डेटा लोगों ने फिल किया मैं वो देखना चाहती हूँ. One way out is click on this 3 dots. Clear? And there is a third option called download responses. So if I click on this download responses, the entire responses will get downloaded in the CSV file. CSV file is just like the Excel file. बिल्कुल Excel की तरह खुलेगी. Yes, I hope my point is clear. So you can simply click on this download responses and your responses will be downloaded in the CSV file. Since it's a blank Google form, blank in the sense there are 0 responses, otherwise I will show you the response sheet. मैं अभी तुम्हें एक response sheet दिखा दूंगी जो Google form से derived है. मैं अभी show कर दूंगी screen पे. Yes, my point is clear, guys. Another way out. Another way is by clicking on this create spreadsheet. तो अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे दिखाएगा क्या आप एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हैं, किस नेम से क्रिएट करना चाहते हैं. यू कैन चेंज द नेम ऑल्सो और यू कैन कीप इट एज इट इज. बाय डिफॉल्ट वही नाम आ रहा है जो आपके क्वेश्चनियर का नाम था, और ब्रैकेट में एक चीज और ऐड होकर आ गई रिस्पॉन्सेस. ठीक है. सो इफ यू वांट टू एडिट इट you can edit or change the name and just simply click on create. Then in your Google Drive a spreadsheet will create with all the responses. And by clicking on this, let me show you. मैं create ही कर देती हूँ. वो बात अलग है कि जो spreadsheet create होकर आएगी that is totally blank. वो बिल्कुल blank होगी. So I'll click on this one. हाँ जी मैम, न्यू रिस्पॉन्सेज जो आते रहेंगे तो इसके लिए बार बार डाउनलोड करने पड़ेगी कि उसी में रिफ्रेश होती रहेगी? नहीं नहीं, सिंक नहीं होती, सिंक नहीं होगी. यू हैव टू डाउनलोड इट एवरी टाइम. बिल्कुल. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. सीएसवी फाइल में? सॉरी सीएसवी फाइल में भी नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा. अभी ने थोड़ा सा स्पीकर से दूर जाकर बोलो बच्चे. सीएसवी फाइल में भी नहीं होगी? नो, ऐसा सिंक का कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे कि एवरी टाइम योर स्प्रेडशीट और रिस्पॉन्स शीट गेट अपडेटेड. नहीं, आपको हर बार न्यू रिस्पॉन्स शीट करनी होगी. हाँ जी, ये शो नहीं करेगी. मैं तुम्हें एक ऑलरेडी क्रिएटेड गूगल फॉर्म दिखाऊंगी, डोंट वरी. बट हमें बस थोड़ा सा फास्टर पेस पे करना होगा क्योंकि मुझे अभी क्विज भी बतानी. देखो ये खाली स्प्रेडशीट आ गई बिल्कुल, क्योंकि इसमें बच्चे कोई भी रिस्पॉन्स ऐड नहीं है. अगर रिस्पॉन्स ऐड होता तो सारी चीजें आती है आपके पास. So I am closing the spreadsheet.
एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है? तो अभी तो मैं इसके रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सेज को ऑन कर रही हूँ, और स्प्रेडशीट वाला रिस्पॉन्सेज वाला पोर्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। कोई और डाउट है बच्चे? नो मैम। नो? ओके। एक और चीज है इसी 3 डॉट में, आपको देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज। I want to enable this, like if you want to go for some of the study and for you each and every response matters। जैसे अभी अभिनय ने पूछा कि मैम नए रिस्पॉन्स आने के बाद क्या ये स्प्रेडशीट अपडेट होगी, आपको ये पता करना है कि मेरी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के बाद कितने रिस्पॉन्सेज आए। सो यू कैन अनेबल दिस, सेलेक्ट दिस। जैसे तुम इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर टिक, राइट टिक बना आ जाएगा, और आपके अब क्या होगा, जितने भी लोग आपका फॉर्म फिल करेंगे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर ईमेल आईडी, द ईमेल आईडी विच यू यूज फॉर क्रिएटिंग दिस गूगल फॉर्म। तो इस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा दैट फलाने बंदे ने ये फॉर्म फिल किया। Yes, I hope you people are getting my point. And some people open this because if your study require, and if each and every respondent is critical for you, कि आपको एक एक रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ऑन रखते हैं और देखते हो कि पर्सन ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया है वो जेन्युइन है या नहीं। कुछ लोग ऐसे हवा में भी फिल कर देते, जैसे हम तुमसे फीडबैक मांगते हैं तो तुम हवा में फिल कर देते हो ना, ये देखो ये 1133112255, क्लियर? तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन में क्या है कि आप रिस्पॉन्स को कहाँ स्टोर करना चाहते हो, आप अपनी ड्राइव पे एक डेजिग्नेटेड फोल्डर बना रहे हो, उसके लिए है ये पॉइंट। क्लियर? शैल आई मूव टू द सेटिंग पार्ट नाउ, द लास्ट वन। We done with the questions, we done with the responses, we done with these tabs. Now I move to the setting portion. Yes or no? And before setting, let me tell you about these 3 dots on the right hand side also. Yes, setting button के बाद 3 dots दिख रहे हैं, more. Yes or no? It's already 4 guys, be quick. Yes, visible? Yes, Click on this 3 dots. So it is showing you make a copy. Make a copy मतलब फॉर्म की एक कॉपी क्रिएट हो जाए। If you click on this make a copy, so it will create a copy of the form. Move to bin, delete करना चाहते हो फॉर्म्स को, तो ये जो फॉर्म आपने बनाया, get pre-filled link is the most advanced version. अगर एक और सेक्शन हो, एक और सेशन इसके लिए डेडिकेटेड होता तो I will for sure tell you about this get pre-filled link option, but अभी जरूरी नहीं है। Next is print. If you want to print this entire form, you can go for this option. Like if you want to add this option in your study, so you can click on print. Next important one is add collaborators. I want to add collaborators to this form. Add collaborators means I want like there are 2-3 people who are associated with me in this study. Let's suppose Sankalp is associated with me, Sudhanshu is associated with me, Tanvi is associated with me, कि हम ये तीनों चारों मिलके ये हेल्दी फूड की स्टडी कर रहे हैं। वो नहीं पता अब हमें कितने हेल्थ कॉन्शियस है, ये तीनों कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, बट आई वांट कि इन तीनों को भी ये फॉर्म दिखे, इन तीनों के पास भी सारे राइट हो जो मेरे पास है। ये कहेंगे आप ही क्यों रख रहे हो बस इस फॉर्म के राइट, जब हम भी तो स्टडी कर रहे हैं। So I will make them as the editor. Let's suppose I am mentioning Sudhanshu. पता नहीं जिसकी ईमेल आईडी होगी, नहीं तो अदरवाइज सुधांशु की ईमेल आईडी नहीं है इसमें, तो यू कैन मेंशन द ईमेल आईडी। बोलो कोई पर्सन अपनी ईमेल आईडी बोलो जल्दी से क्विकली। संकल्प मिश्रा। तुझे फॉर्म भी चाहिए, तुझे एडिटिंग राइट भी चाहिए, सब तुझे ही चाहिए संकल्प। संकल्प अच्छा क्विकली, हाँ संकल्प आगे मिश्रा.0086111। संकल्प देख, स्क्रीन देखता रहे ना कहीं गलत ना हो जाए। संकल्प मिश्रा, यस आगे .008 बड़ी डिफिकल्ट ईमेल आईडी है तुम्हारी। यस आगे 6118819 6118819। @me। अब देखो जैसे ही मैं संकल्प मिश्रा की ईमेल आईडी डाल के इसको एडिटर बना दूंगी, देन
संकल्प कैन ऑल्सो मेक चेंजेस इन दी आईडी। अब आ गई संकल्प की ईमेल आईडी, मैंने इसको पहले ऐड किया हुआ है तो इट इज शोइंग। ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस एडिटर। अब इसको मैंने क्या बना दिया, एडिटर। सो क्लिक ऑन सेंड ऑप्शन। तो अब देखना संकल्प की ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगी। यस संकल्प, हैव यू गॉट द नोटिफिकेशन दैट यू आर द एडिटर ऑफ द फॉर्म? यस मैम। अब संकल्प के पास भी ये फॉर्म पूरे एडिटेबल मोड में खुलेगा। संकल्प कैन ऐड एनी क्वेश्चन, संकल्प कैन रिमूव एनी क्वेश्चन। देखो संकल्प, जस्ट सेकंड। संकल्प के पास अब जो नोटिफिकेशन आई होगी, संकल्प कैन एडिट इट, संकल्प कैन रिमूव एनी ऑफ द क्वेश्चन। सो यू कैन ऐड द एडिटर्स इन योर फॉर्म ऑल्सो। लाइक हाँ देखो ये पिंक कर्सर जो पिंक हुआ है ना स्क्रीन, पिंक का मतलब क्या है कि इसमें संकल्प का कर्सर आ गया, जैसे आपके गूगल डॉक ड्राइव पे होता है। यस मैम। अब संकल्प कोई एडिटर करो, ऐड कोलैबोरेटर्स में जाके तुम किसी फ्रेंड को ऐड करो अपने, यही मेम्स के ही करना। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी, देखो ये चेंजेस इसने किए हैं। या तो तुम कुछ डिलीट कर दो, जर्नल इंफॉर्मेशन वाला टाइटल डिलीट कर दे। मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, हाँ कर दो इसको डिलीट। देखो मेरा कर्सर तुम्हारे आगे मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो अपडेटेड, मेरी स्क्रीन पे से जर्नल इंफॉर्मेशन वाला टाइटल गया, क्यों? क्योंकि मैंने एडिटिंग राइट संकल्प को दे दिए थे, तो संकल्प कैन ऑल्सो एडिट द फॉर्म। सो इन दिस वे यू कैन शेयर द editorship with others also. Yes, I hope my point is clear and you people are with me. Yes or no? Yes, ma'am. चलो अब संकल्प फॉर्म बंद कर दो तुम, पता चला वहां से तू एडिशन कर रहा है कुछ और मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ उन्हें। यस मैम, कर दिया। So add collaborators. Please unmute. So next option, अब ना there is a difference between owner and editor. अब देखो मेरे नाम के आगे क्या दिख रहा है, अभी स्क्रीन पे शो होगा। मेरे नाम के सामने क्या दिख रहा है? ओनर। ओनर। एंड संकल्प मिश्रा इज द editor. Being a owner, I have the right to make Sankalp Mishra as the owner or I have the right to remove him. मुझे लग रहा है कि ये ना क्वेश्चन छेड़खानी कर रहा है क्वेश्चंस के साथ, इसको हटा दूं। सो ओनर के पास ये एक्स्ट्रा राइट होता है कि ओनर कैन रिमूव एनीबॉडी। संकल्प के पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, संकल्प किसी को रिमूव नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मैं किसी तीसरे बंदे को भी ऐड कर दूं इसमें, सो दिस राइट विल बी अवेलेबल ओनली विद द person who is owner. Owner can add anybody or owner can remove anybody. Along with that, editor can also add anybody. देखो editor करने के बाद तुम collaborator में जाके add कर सकते हो, but किसी को remove नहीं कर सकते। क्लियर? तो owner के पास ये एक्स्ट्रा फीचर होता है कि owner can remove anybody and editor cannot remove anybody. किसी को फॉर्म में से रिमूव नहीं कर सकता। editor can add anybody. एडिटर ऐड किसी को भी कर सकता है। यस, आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर, द रिलेवेंसी ऑफ ओनरशिप एंड एडिटरशिप। क्विकली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फॉर्म की ओनरशिप किसे नहीं देनी, आपने एडिटरशिप दे दो बट ओनरशिप मत दो, क्योंकि अगर आपने और एक गूगल फॉर्म में एक ही ओनर हो सकता है। अ गूगल फॉर्म कैन हैव n नंबर ऑफ एडिटर्स बट आ गूगल फॉर्म ओनली हैव वन ओनर। ओनर एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एडिटर्स कितने भी हो सकते हैं। यस, माय पॉइंट इज क्लियर गाइस? यस और नो? यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट इज द स्क्रिप्ट एडिटर विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको बहुत ज्यादा हायर लेवल पर पहुंचने के बाद जरूरी होता है। और एड ऑन्स के फीचर्स है कि आप क्या एडिशनल और चाहते हो, ये टाइम बचेगा तो कराऊंगी। अभी उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विज वाला पोर्शन मुझे कराना है। प्री फील्ड लिंक क्या है? प्री फील्ड लिंक में बच्चे ये तुम्हारे को मैं करा तो दूं, बट अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारी स्टडी में कहीं काम नहीं आना ये। प्री फील्ड लिंक का मतलब क्या है कि आई वांट कि तुम्हारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल होकर आ जाए मेरे पास, तुम्हें ना डालना पड़े। जैसे तुम फॉर्म में हर बार अपना, जैसे हर एमसीक्यू टेस्ट में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन खुद डालनी पड़ती है ना, तो गेट प्री फिल्ड लिंक में क्या होगा कि तुम लोगों की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली, जैसे तुमने फी पेमेंट करते हो मेम्स के डैशबोर्ड पे जाके, तो तुम्हारी डिटेल ऑटोमेटिकली नहीं फिल हो जाती,
तुम इनरोलमेंट नंबर डालते हो, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती है ना, दिस वे। सो इट इज मतलब इट टेक्स टाइम कि मुझे एक पूरा सेशन चाहिए अगला वाला भी इस चीज को समझाने के लिए। सो इतना नहीं है टाइम। ये गेट प्री फिल्ड लिंक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तुम्हारी स्टडी में कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने बिल्कुल एकदम गूगल फॉर्म का पोस्टमार्टम कर दिया है, इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बच गया हो, कोई ऐसा एड ऑन्स का टाइम के लिए टाइम बचेगा। सो आई विल शो यू दी एड ऑन्स ऑल्सो। नाउ क्विकली मूव टू द सेटिंग पार्ट ओनली, ये बचा है सिर्फ, इस पे ध्यान देना। यस, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? अभी तक जो भी पॉइंट्स किए हैं हमने, कोई डाउट है बच्चे उसमें? नो मैम। चलो, अब इसमें है पहला ऑप्शन, सेटिंग इज शोइंग मेक दिस अ क्विज। अब जैसे हम तुम्हें एमसीक्यू टाइप देते हैं, एमसीक्यू टेस्ट होता है, सारा क्विज फॉर्मेट में होता है। सो ये मुझे क्या कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चनियर को एमसीक्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो। सो आई एम क्लिकिंग ऑन यस, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यस, इट इज शोइंग मी द ऑप्शन रिलीज मार्क्स। क्या आप जैसे ही पर्सन सबमिट करे और उसको स्कोर विजिबल हो जाए, या लेटर ऑन आप चाहते हो कि आप मार्क्स को रिलीज करो ऑन देयर ईमेल आईडी? ऐसा होता है ना कि हम जब एमसीक्यू लेते हैं हम बाद में आपको स्कोर रिलीज करते हैं, जिसके लिए आपके पास एक मेल आता है। यस मैम। ठीक है, अदरवाइज क्या ऑप्शन होता है कि मैंने इमीडिएटली आप लोगों को कहा क्लास के बीच में चलो क्विज अटेम्प्ट करो, और जैसे ही तुम अटेम्प्ट करते हो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड व्यू स्कोर। तो ये वही है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब जैसे ही आपने सबमिट किया यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ व्यू स्कोर। बट अगर मैं इसको ऑफ करके लेटर ऑन सेलेक्ट कर दूंगी तो आपके पास रिस्पॉन्स बाद में आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम जैसे शैतान बच्चों के लिए तुम क्या करते हो, एक जगह गूगल फॉर्म फिल खोल लेते हो और दूसरी जगह तुम ब्राउजर खोलते हो, इसी ब्राउजर पे या किसी और पे टैब पे सर्च करते हो ना, कर लेते हो सर्च। हाँ यस क्या मैम। सोचा? ऐसा ही करते हैं मैम हम, दूसरा टैब खोलते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, करते हैं ना। सो दिस Yes, ma'am. इज अ लॉग्ड मोड विच इज because of you people are very lucky, this feature is not yet available, कि आप किसी और टैब को नहीं खोल पाएंगे, जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए था। बट दिस लॉग्ड मोड, और पर ऐसा नहीं है, दिस फीचर विल अपीयर इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, मैं ये भी गारंटी देती हूँ आ जाएगा ही। जिस हिसाब से गूगल फॉर्म में मैंने चेंजेस नोटिस किया, आई एम द यूजर ऑफ गूगल फॉर्म फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर्स, तो जिस हिसाब से इसमें अपडेशन हो रहे हैं ना, तो ये मोड भी बहुत जल्दी अनेबल हो जाएगा कि आप कोई और टैब खोल ही नहीं पाओगे एक्सेप्ट दिस गूगल फॉर्म। क्लियर? यस और नो? यस गाइस, तो क्विकली प्रॉब्लम की प्लीज। बात है ना, हाँ जी, ये तो प्रॉब्लम की बात है। ये प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम की बात है आप लोगों के लिए, एडवांस फीचर। सो दिस फीचर इज टिल नाउ अनेबल्ड। अभी इसको आप ओके नहीं कर सकते, देखो कर्सर नहीं काम करेगा इस पे तुम्हारा अभी, क्योंकि ये फीचर अनेबल नहीं है। लर्न मोर में यही दिखाएंगे दैट यू कैन लेटर ऑन गेट दिस एज अ ऑप्शन। देखो अब ये क्या बता रहे हैं, मिस्ड क्वेश्चंस। अगर कोई बच्चा बाय चांस कोई क्वेश्चन छोड़ दिया किसी बच्चे ने, मतलब उससे गलती से रह गया, तो ये आपको वार्निंग देगा। देखो ये आपको कहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका मिस हो गया, करेक्ट आंसर आपको दिखाएगा। करेक्ट आंसर कैन बी व्यूड आफ्टर द स्कोर्स आर रिलीज्ड। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो जब आप अपना रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर का पता नहीं चलेगा, और आपको ये पॉइंट वैल्यूज भी दिखाएगा कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। और मैं सेट करना चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो, तो मैंने ऐड कर दिया 1 पॉइंट। यस, क्लियर? यस और नो? यस मैम। देखो मिस्ड क्वेश्चन में दिखाएगा कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपने मिस कर दिया, जिसमें आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कौन से क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे वो भी दिखाएगा, और एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं वो भी दिखाएगा, अगर आप इन सब चीजों को ऑन करते हो। एंड इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज गो फॉर दिस सेटिंग।
ऑन द मिस्ड क्वेश्चन, ऑन द करेक्ट आंसर, सो दैट पर्सन गेट टू नो कि अगर गलत है तो सही आंसर क्या है पता होना चाहिए, और पॉइंट वैल्यूज भी विजिबल होने चाहिए, सो दैट यू कैन टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू दैट। अब दिख रहा है कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसमें अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं चलेगा, सोचो उसके लिए, ठीक है। सो डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू आप 1 मार्क्स ऐड कर सकते हो, कि आपका माइंड सेट है कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो पहले ही डिफॉल्ट में 1 मार्क्स डाल दो, इजी। यस और नो? ये सारी सेटिंग्स तब आई हैं जब मैंने इसको क्विज बनाया है। इफ आई मेक इट नॉट अ क्विज, ये सारी सेटिंग्स डिसअपियर हो जाएंगी। इफ आई एम मेकिंग इट एज अ क्विज, देन दिस सेटिंग विल अपीयर। ये सारी सेटिंग्स तब आई हैं जब मैंने इस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट किया है। यस, क्लियर? अब देखो क्विज में कन्वर्ट करने के बाद ये सारी सेटिंग्स आ गई हैं, एंड अब देखो सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस यहाँ पर आएंगे। अब मुझे लग रहा है कि ईमेल आईडी और इन सब में तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। मार्क्स मिलने कहाँ से स्टार्ट होंगे? क्वेश्चन से मार्क्स मिलने स्टार्ट होंगे। लेट्स सपोज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हेल्दी फूड इन द कोविड सिचुएशन? ये एक शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट अ राइट आंसर। तो मैं चलती हूँ इस पे, और इसका भी लॉजिक बता देती हूँ कि क्या है। ऑफ तो नहीं हो गया? मेक द सर्कल्स असाइन पॉइंट्स। एक सेकेंड, जैसे ही आप इसको क्विज बनाएंगे, सो दे विल आस्क यू फॉर द राइट आंसर्स आल्सो। अब अगर मैंने किसको क्विज बनाया है तो राइट आंसर तो मैं ही फीड करूंगी ना कि इसके राइट आंसर्स क्या होंगे। सो आई एम लुकिंग फॉर दैट। It's not showing me the question. मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ सो दैट इट विल शो मी द क्वेश्चंस अगेन। मैंने इसको क्विज में कन्वर्ट किया है, बट क्विज फॉर्मेट में मेरे पास शो नहीं हो रहा। यस, because in the quiz you have to feed the right answer also, so it is always advisable to go for MCQ type question, क्योंकि MCQ टाइप में आपको पता है कि इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, और एक ही ऑप्शन गलत हो, मतलब इसमें 3 में से एक, आउट ऑफ 4 ऑप्शन देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर। बट शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ फॉर्म में जाओगे तो आपको चीजों को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, आपको हर बच्चे का रिस्पॉन्स रीड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गिव द मार्क्स मैनुअली। अपडेट हो रहा है, एक सेकंड। यस, तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है टू मेक इट एज अ आंसर और टू मेक इट एज अ राइट ऑप्शन। यस, नाउ सी, यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी। देखो इसको मैंने जब क्विज में कन्वर्ट किया, सो इट इज आस्किंग मी अबाउट द आंसर की, कि इसकी सही आंसर की क्या है, और बाय डिफॉल्ट ये मुझे क्या दिखा रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सही करोगे सो यू विल गेट अ 1 पॉइंट। सो आई एम फीडिंग द आंसर की, क्लिक ऑन दिस आंसर की, और since it's a checkbox question, so more than 3 options are available, so according to me all are the healthy food, clear, except let's suppose drinks को छोड़कर मैं कह रही हूँ बाकी सारे हेल्दी फूड की कैटेगरी में आते हैं। एंड क्लिक ऑन एड आंसर फीडबैक। अगर आप कुछ डिटेल चाहते हो, लाइक मैं चाहती हूँ कि बच्चे को करेक्ट आंसर पता चल जाए, या इनकरेक्ट आंसर के लिए आप कोई लिंक देना चाहते हो कि यस दिस इज द आंसर, और फ्रॉम वेयर आई रेफर दिस, सो यू कैन मेंशन द लिंक आल्सो, यू कैन शेयर द वीडियो। सो आई एम क्लिकिंग इट ऑन डन, ठीक है। अब मैंने इसका जो आंसर की है वो स्टोर कर दी है। लेट्स सपोज दिस ऑप्शन, तो इसमें मैं क्या कह रही हूँ
आंसर की क्या होनी चाहिए, ओनली दिस, Delhi. Clear? So I am selecting Delhi and click on done option. और MP, let's suppose मैंने MP सेलेक्ट कर दिया और ये दो हो गए मेरे राइट आंसर। बट अब जैसे यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिफाई दी हर्बल प्लांट, इसमें भी मैं आंसर की ऐड कर सकती हूँ। सो आई एम एडिंग आंसर की एज तुलसी प्लांट। अब नाउ देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड मार्क ऑल अदर आंसर एज इनकरेक्ट। अब ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है कि अगर किसी ने बिल्कुल ये इस तरीके से नहीं लिखा T कैपिटल ULSI प्लांट, तो आप उसके आंसर को इनकरेक्ट मान लोगे। सो यू हैव 2-3 ऑप्शन। कोई हो सकता है किसी ने टाइप करते वक्त कैप्स लॉक ना दबाया और उसने ऐसे लिख दिया। यस, आई होप यू पीपल आर विद मी। यस मैम। ठीक है, तो आप जितने भी पॉसिबल करेक्ट आंसर है उतना लिख सकते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे ने सिर्फ तुलसी लिख दिया, मैंने पूछा आइडेंटिफाई द हर्बल प्लांट, किसी बच्चे ने सिर्फ तुलसी लिख के छोड़ दिया। पॉसिबल। So you can add all the possible answers in a short answer type question. और फिर आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो कि इन तीनों के अलावा कोई भी आंसर है तो आप उसको इनकरेक्ट मानो और उसको 1 नंबर मत दो। ठीक है? Yes, I hope you people are getting my point. This is also very important. And in this way you can add as many correct answer as possible. Yes or no? Yes or no? Guys, quickly, yes or no? यस मैम। एंड आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द डन बटन, क्योंकि आपकी आंसर की तब स्टोर होगी जब आप डन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है? ऑलराइट, सो क्विज पॉइंट इज क्लियर। अब तो तुम्हें सारे लूप होल्स पता चल गए कि कैसे तुम्हारी टीचर तुम्हारे एमसीक्यू क्रिएट करती है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं क्विकली रिस्पॉन्सेस। कलेक्ट ईमेल एड्रेस मैनुअली, हमने इसको ऑन कर दिया। सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब है, सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम दैट उनके आंसर्स की एक मेल आ जाता है उनके पास। हाँ, जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो आपके पास एज अ रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपने ये फॉर्म फिल किया। इट इज एडवाइजेबल टू ऑफ दिस फीचर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रिसर्च स्टडी। बाय, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप किसी रिसर्च के लिए फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो इसको ऑफ रखें। और अगर आप किसी से किसी के क्रेडेंशियल्स मांग रहे हो, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन दो, तो इसको आप ऑन रखो। इससे क्या होगा, उस पर्सन को पता चल जाएगा कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन भेजी है अपनी। ठीक है? और बट अगर आप कोई क्वेश्चनियर फिल करा रहे हैं तो कभी भी इसको ऑन मत करो, क्योंकि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो योर एंटायर एफर्ट्स in the form of creating a questionnaire will go to the other person. I hope you people are getting my point. No? समझ आई है मेरी बात? यस मैम। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चनियर स्टडी बेस्ड क्वेश्चनियर फिल करा रहे हैं तो इसको हमेशा ऑफ रखो। और कोई क्वेश्चन आप कुछ ऐसा चीज करा रहे हैं कि आपको पर्सन को पता होना चाहिए उसने क्या क्या फिल किया, तब ऑलवेज कर दो। एंड देयर इज थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, व्हेन रिक्वेस्टेड। व्हेन रिक्वेस्टेड मतलब अगर पर्सन को चाहिए होगा तो ही जाए, नहीं तो नहीं। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट द रिस्पांस शीट और डू यू वांट द रिस्पांस ऑन योर ईमेल आईडी। इफ यू क्लिक ऑन यस तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आपके पास। ठीक है? सो यू कैन सेलेक्ट व्हेन रिक्वेस्टेड आल्सो। क्लियर? नेक्स्ट इज अलाउ रिस्पांस एडिटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Yes, what do you mean by that? This allow response editing means आपने एक बार फॉर्म फिल किया और आपके पास उसको एडिट करने का ऑप्शन आएगा। मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, आफ्टर दैट यू कैन एडिट द फॉर्म और नॉट। इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर दिस ऑप्शन। मतलब इसे यस करना चाहिए? नो मैम। इसको यस नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेट्स सपोज आपने किसी पर्सन ने फॉर्म फिल किया और बाद में 1-1.5 दिन बाद उसको एडिट कर दिया और आपने रिस्पॉन्स शीट पहले से ही डाउनलोड कर ली,
तो आपको नहीं पता चलेगा. सो यू शुड नॉट अलाउ फॉर एडिटिंग लेटर ऑन. ठीक है, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट भी ये जो चीज है ऑफ है. रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन मेल. जैसे अब क्या है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो एनीबडी कैन फिल दिस फॉर्म, एंड इफ यू वांट टू गेट दिस फॉर्म फिल्ड only from the mains user, then you can collect it as okay. Limit to one response. if you want कि एक पर्सन एक बार ही रिस्पॉन्ड कर पाए, मतलब एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स आए, then you can click on this option. ठीक है, और if you want that a person can fill it many times, then you can off it. Clear? Rest is totally not required. Yes, I hope you people are getting the things, और अब आप लोगों को गूगल फॉर्म पूरा अच्छे से समझ आ गया है. Yes or no? हम जो एडिट रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन है, हाँ जी. हम इफ समवन एडिट देयर रिस्पॉन्स, मैम स्प्रेडशीट जब डाउनलोड करेंगे तो मैम न्यू रिस्पॉन्स आएगा कि एक और उसका मतलब नहीं, एक और रो आ जाएगी? एडिटेड रिस्पॉन्स आएगा, उसमें आपको दिखाएगा कि इस पर्सन ने क्या एडिशन की है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या की. इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मैम सब कुछ अगर दिखेगा मतलब क्या एडिट किया है. हाँ, दिखेगा आपको कि इस पर्सन ने क्या एडिट किया है. इसलिए हम कभी एडिटिंग के टुवर्ड्स ना जाना ही नहीं चाहिए बच्चे. एडिटिंग के टुवर्ड्स जाओगे सो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द एप्रोप्रिएट रिजल्ट एनालिसिस. रिस्पॉन्स शीट भी गड़बड़ा जाती है उससे. तो एडिट करवाओ ही मत किसी को. फॉर्म फिल करने के बाद एडिट की परमिशन दो ही मत. आ जाएगा आपके पास एडिटेड रिस्पॉन्स आ जाएगा इफ यू डाउनलोड द स्प्रेडशीट आफ्टर एडिटिंग. ठीक है. यस, एनी अदर डाउट? यस गाइस, क्विकली, एनी अदर डाउट? Yes, any other doubt? Anybody who are interested in seeing a filled Google form? तो मैं दिखा देती हूँ, because most of the people start leaving the meeting. इसीलिए एक मैं Google form आप लोगों को दिखा देती हूँ, which I just got. Yes, देख लो एक बार कैसा दिखेगा. Yes, any other doubt till the time? If you have any doubt, you can ask. जब तक फॉर्म खुल रहा है मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट नहीं है? तो समझ आया है कुछ या नहीं आया? चलो मैं ये फॉर्म दिखाती हूँ तुम्हें कैसा दिखता है. गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्स आने के बाद कैसे रिस्पॉन्सेज और टेक्निकल स्टैटिस्टिकल क्या ग्राफ पाई चार्ट्स बनकर आते हैं वो देख लो तुम लोग. I would be taking the next session also on the statistical functions and the text functions. जो भी आप सब लोग बिजनेस स्टैट्स में पढ़ रहे हैं, मीन, मॉड, मीडियन, कोवेरियंस, कोरिलेशन. So first half would be dedicated to this statistical function, and the second half is dedicated to the text function, how you can convert the data in the uppercase, the lowercase, and the trim function. ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी. Yes, I hope the screen is visible. ये तुम्हारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आई कार्ड का डेटाबेस है. देखो रिस्पॉन्स में कितना दिख रहा है? 116. 116. सो इट इज शोइंग कि मेरे पास 116 रिस्पॉन्सेज 2020 बैच के आ चुके हैं. एंड आई क्लोज द रिस्पॉन्सेज आल्सो. क्लोज है रिस्पॉन्स. अब चलो देखो इसकी समरी दिखाती हूँ मैं तुम्हें. ये समरी मुझे पहले सब बच्चों की ईमेल आईडी दे रही है. दोज हु फिल्ड द फॉर्म, प्रखर, खुशिन, भूमि, कुणाल. These are showing the enrollment numbers. Now see, दिख रहा है प्रोग्राम में मुझे सर्कल दिखा रहा है पाई चार्ट दैट 100% people belong to the BCom honors. देखो दिखा रहा है ये साइड में ब्लू. yes guys, this is important. ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम्हें समझ आए कि गूगल फॉर्म फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली कैसे आ जाते हैं पाई चार्ट्स. yes or no? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट देखो. शिफ्ट रेड circle, red slice is showing the people who belongs to the second shift, the evening shift, and this blue slice is showing that this 49 means 49.1%, or we can say 57 students belongs to the first shift. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. All right. See the next batch 2020. सारे बच्चे बैच 2023 को बिलोंग करते हैं.
बिकॉज ये फॉर्म बना ही उनके लिए था। बाकी सब बच्चों के एड्रेस मुझे शो हो रहे हैं, मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसने ऑटोमेटिकली ये इसको शो किया। देखो नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में से क्या एनालाइज कर पा रहे हो तुम? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट B बिलोंग्स टू positive. बी पॉजिटिव। इंडियंस आर बी पॉजिटिव, 90% ऑफ द इंडियंस आर बी पॉजिटिव, यही है। Yes. बी पॉजिटिव इंडियंस आर बी पॉजिटिव। नेक्स्ट अनदर हाईएस्ट हाँ फ्रीक्वेंसी। जी। हाँ जी, अनदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी O positive. ओ पॉजिटिव। सो यू कैन, अब देखो यहाँ ओ पॉजिटिव की ना नीचे एक छोटा सा ओ भी आ रहा है, जिसने किस तरीके से लिखा होगा उस तरीके से इसने रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज किया। सो यू हैव आधार नंबर, फादर्स नेम, सो इन दिस वे यू गॉट दी डिटेल्स। ठीक है, ये सब कुछ शॉर्ट आंसर था। अब देखो ये दिख रहा है नीचे, तुम लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो इसमें डाउनलोड अपलोड की होगी, तो मुझे दिख रही है प्रखर की फोटो, संभव की, रिदम की फोटो, उज्जवल की। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो मुझे तुम लोगों की फोटो विजिबल हो जाएगी। लेट्स सपोज आई want to see the picture of प्रखर जैन, तो ये मुझे दिख जाएगी यहाँ पर, बिकॉज आई एम द एडिटर ऑफ दिस फॉर्म। सो आई एक्सेस डिनाइड आ रही है, क्योंकि मेरे पास जो मेन ड्राइव जिसने ये क्रिएट किया होगा उसके पास राइट है। देखो अब मैं दिखाती हूँ कि इस फॉर्म के एडिटर कौन कौन है। मैं एडिटर हूँ इसकी, बट ओनर नहीं हूँ इस फॉर्म की। देखते हैं कौन कौन कोलैबोरेटर है इस फॉर्म का। चलो जल्दी से, इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 4:30। एनी डाउट? Yes, No, any ma'am. doubt? Okay, guys. So I hope you people got the things. Please try to finish the assignment by next week. और उसमें assignment में मैंने यही दिया, you have to create a quiz of 20 question involving all type of MCQ type of question also, the short answer type also. तो आपने उसमें सब questions को incorporate करना है, images also, videos also। तो आपने इस तरीके से Google form create करना है। Clear? All right, guys. Bye bye. Have a nice day and best wishes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, guys. Any doubt? Leave the meeting. Otherwise, हम कहाँ पर है असाइनमेंट का लिंक? sorry. मैम Nishan? असाइनमेंट का लिंक कहाँ पर है? I'll be sharing. I'll be sharing. अरे सेशन तो खत्म होने दो। अब आपने अभी कहा मैं था मैम कल अभी छुट्टी है ना? कल क्या है? कुछ तो है कल। कल किस बात की छुट्टी? कल कोई छुट्टी नहीं है। ओके। Okay, guys, done. Quickly leave the meeting. Avya, Udit is still in the meeting. Udit, you want to say something? Udit. Okay. Udit. Yashika, leave the meeting. Yashika.